Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today is lecture number 10 of differential equation in online session. Layout of the lecture. First, I will explain the review of the lecture what we have studied in the last class. Contents of the current lecture. In this lecture, we will study the method named as variation of parameter to find the solution of a non-homogeneous differential equation. Initially, I will explain the methodology of variation of parameters, then the summary of the method, then we will discuss some examples related to the method to explain exactly what the method is and how to apply it, and finally I will give you some questions for practice. Summary. Recall of the last lecture. In the last lecture we studied annihilator approach, annihilator operator method to find the solution of a non-homogeneous differential equation. The technique which we used for this annihilator operator was undetermined coefficients. We used this technique and the selection of yp was depending on the annihilator approach. Annihilator operator was basically when you have any function y of the type a0 a1x plus a2x square up to a and xn, that means simply are polynomials, then this is basically the annihilator operator of that function. And when you have a function of the type with exponents in it along with the polynomial terms multiple of x, then d minus alpha power n represents the annihilator operator of this function. If you have exponential function, the linear combination of x trigonometric functions, then this is the general representation which we used to find the annihilator operator of such type of functions. वो चाहे cos की फॉर्म में हो, चाहे sin की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो हम इस तरह का annihilator operator डिफाइन करते हैं. जब हमने क्वेश्चंस किए थे तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो काम आई थी वो ये थी कि if we are having L1 which operates on Y1, L2 which operates on Y2, then this multiple will annihilate Y1 as well as Y2. This was basically the approach which we used in the annihilator approach method. All this technique is to find YP. Once YP is defined, YP is basically defined with annihilator approach. Once YP is defined, then we will proceed to find undetermined coefficients defined in this YP. और वो जो undetermined coefficients वाला method है वो simply take the derivatives of these YP, put it in a main differential equation, find the remaining constants, your YP will be complete. Then YC, that YC is basically the solution of a homogeneous part of that differential equation. So the main general solution can also be obtained by summing up the complementary solution YC and the particular solution YP. ये basically method था जो हम लोगों ने annihilator
ऑपरेटर या एनिलेटर अप्रोच को यूज किया था टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में बेसिकली मेथड इज नेम्ड एज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। Variation of parameter is used for non-homogeneous differential equations, where this g of x represents the non-homogeneous part, so it is used for non-homogeneous differential equation. ये चीज आप पहले से जानते हैं। whenever we are having a non-homogeneous differential equation, the solution will contain two parts. One of them is yc, while the second one is yp. yc कैलकुलेट करने के लिए आपको होमोजेनियस पार्ट ऑफ द इक्वेशन रिक्वायर्ड होता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए यू नीड अ नॉन होमोजेनियस पार्ट। इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को अभी तक हम लोगों ने दो मेथड से पहले स्टडी कर चुके हैं। एक है अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट बाय सुपरपोजिशन अप्रोच, अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स बाय एनिलेटर अप्रोच, जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया है आपको। आज हम थर्ड मेथड जो करेंगे दैट इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। Finding the complementary solution has already been completely discussed. In the last two lectures, we learned how to find the particular integral of a non-homogeneous equation by using undetermined coefficients. वही बात कि हम लोग पहले दो मेथड पढ़ चुके हैं undetermined coefficient से related. Then the general solution of a linear first order differential equation of the form. If you are having just अच्छा अभी होगा क्या, अभी मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड है क्या। फॉर दैट बट आई विल टेक अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड करते हैं वो अभी देखते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म is given by, this is basically the solution of that linear differential equation. ये solution आप ये समझ लें कि this solution is obtained by any of the method. आप इसे कह लें कि जो पहले इससे पहले दो मेथड आप कर चुके हैं, आप उन दो मेथड को में से कोई भी मेथड यूज करें, you will get this type of relation. अभी हम यही रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं by using the concept of variation of parameter. In the last slide जो सॉल्यूशन डिफाइन था उसमें से एक पार्ट था C1 इंटीग्रल ऑफ माइनस पी टी ऑफ एक्स, दिस इज सिंपली yc होता क्या है, वो होमोजेनियस पार्ट का सॉल्यूशन होता है। दूसरी जो टर्म थी वो इस तरह के एक इंटीग्रल के ऊपर डिपेंडेंट थी। सो एक टर्म अगर yc हो गई है तो यकीनी बात है दूसरी टर्म yp पे डिपेंडेंट होगी। इन दोनों को जब हमने प्लस किया था देन वी गेट द टोटल जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम यही सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे विद द कांसेप्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। पहले वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की जनरल बातों को हम स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या था, ये कहां पर इंप्लीमेंट होता है, इसमें क्या खास बात है। जैसे कि इससे पहले आप लोगों ने जो दो मेथड पढ़े थे वो एक है यूसी अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट के। फॉर एग्जांपल मैं दोनों मेथड के नाम लिखने के बजाय मेथड 1 मेथड 2 कह देता हूँ। मेथड 1 का मतलब होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और ये एनिलेटर अप्रोच है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में भी आपने ये पढ़ा था कि इसकी चंद रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ऑन जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स अगर पोलिनोमियल हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, अगर एक्सपोनेंशियल हुआ तो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं अप्लाई कर सकते। एनिलेटर अप्रोच अब आपने पढ़ा तो आपने अगेन रिस्ट्रिक्शन लगाई जी ऑफ एक्स के ऊपर कि अगर जी ऑफ एक्स में ये कंडीशन हुई, इस तरह का हुआ तो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब मेथड ऑफ वेरिएशन कहां पर अप्लाई होता है, कहां पर नहीं अप्लाई होता, ये क्या कहता है, अब वो बात देखते हैं। दिस मेथड इज मोर जनरल मेथड टू सॉल्व द नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल ये थोड़ा पर्टिकुलर मेथड हो जाते हैं कि खास किस्म की जी ऑफ एक्स के लिए एप्लीकेबल है, मगर
ये थोड़ा ज्यादा जनरल है। जनरल का मतलब है कि इसका स्कोप थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ये ज्यादा तरह की इक्वेशंस को टैकल करेगा। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट फेल्स। जहां पर ये मेथड काम नहीं करता, 1 2 दोनों मेथड्स काम नहीं करते, वहां ये काम कर जाता है। This method is not limited to the input function that are combination of 4 type of functions. Again, ये वही बात कर रहे हैं जो मैंने अभी बात की थी कि ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपके जो g of x है वो इस तरह का फंक्शन हर सूरत होना चाहिए। ये इसकी लिमिट थोड़ी सी beyond this limit it can work. It is also applicable to linear differential equations with variable coefficients. हम लोगों ने जो अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स पहले पढ़े थे, उन दोनों टाइप की मेथड्स में जो कांस्टेंट्स हमने लिए थे, जो कोफिशिएंट्स लिए थे वो कांस्टेंट थे। यहाँ पर वेरिएबल कोफिशिएंट्स को भी हम लोगों ने लेके चलना है, और वो भी एज एन एग्जांपल हम डील करेंगे। The particular integral yp is only possible if the associated homogeneous equation can be solved. This is the only condition here. Yp is only possible if the associated homogeneous equation is solved. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप yc निकाल लेते हैं तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आप yc नहीं निकाल सकते तो आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। Homogeneous part of differential equation can be solved का मतलब ये हुआ कि you can find yc. If you can find yc, you can guess yp. By guessing this yp, you can move through the method of variation of parameters. So, बेसिक शर्त क्या हुई? सिर्फ आपका yc कैलकुलेट हो जाना चाहिए, बाकी मसला नहीं है। अब आ जाते हैं हम उसी बात की तरफ जो पहले स्लाइड पे हम लोगों ने इनकम्प्लीट छोड़ी है। हमने ये कहा था कि सपोज वी आर हैविंग this as a particular solution of our first order linear differential equation where we have taken this as yc उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि yc is c1 e power minus integral of p dx। c1 तो नहीं, हम ये कह देते हैं this is y1। so by using this y1 जो yc के अंदर होगा, जो पिछली लास्ट स्लाइड में मैंने ये कहा है कि yc आएगा फिर हम आगे जाएंगे। yc कोई फंक्शन देगा, उस फंक्शन में से आप एक सोल्यूशन उसी में से पिक करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने y1 सिलेक्ट कर लिया है, इन्होंने y1 ये सिलेक्ट कर लिया है, ये yc था बेसिकली उसी में से सिलेक्ट हुआ है। इज द सॉल्यूशन ऑफ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx, ये हो गया। इसका जब सोल्यूशन निकाला वो yc आया, yc में से हमने y1 निकाल लिया। अब therefore the general solution of the form is this is the main solution of the differential equation. जनरल सॉल्यूशन जब आपके पास yc आ जाएगा, ठीक है, आपने y1 एक सिलेक्ट कर लिया, उसमें से जो वेरिएबल टर्म होगी उसे y1 आप कह देंगे, देन यू कैन गेस yp। yp क्या होगा? सिंपली u1 मल्टीप्लाई बाय y1। दिस इज योर yp। अब हमारा कंप्लीट वर्किंग क्या है? और वर्किंग इज टू फाइंड दिस थिंग u1। जैसे u1 आता गया हमारा yp कंप्लीट हो जाएगा, दैट विल बी मल्टीपल ऑफ y1। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हम इस yp को जो गेस हमने कर लिया है, yc को देखते हुए yp गेस कर लिया है, इस yp को हम इक्वेशन में यूज करते हैं और u1 फाइंड करते हैं। यहाँ पर एक बात को आप जहन में रखिएगा कि y1 जो है वो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर कोई भी y1 इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि अगर आप y की जगह पे y1 लिख देते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ये बेसिकली कहने का मतलब ये है। सॉरी, बेसिकली y1 सॉल्यूशन है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, सो f ऑफ x की जगह पे नहीं आएगा, बट इट विल बी हैविंग 0 है।
ये हमें आउटपुट में 0 देगा क्योंकि ये होमोजीनियस पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन था y1। इस चीज को माइंड में रखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। Notice that the parameter C1 has to be replaced by U1. We substitute YP in a given differential equation. YP जो भी सिलेक्ट किया था as per the pattern जो कि अनडिटर्मिनेट कोएफिशिएंट का मेथड था, उसका डेरिवेटिव लिया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया और यहाँ पर हमने सिंपली पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने एक U1 कॉमन लिया। मजीद इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, मैं मेन एग्जांपल की तरफ ज्यादा टाइम लगाऊंगा। यहाँ पर आप कॉमन लेंगे, ये काम वही है जो पहले आप कर चुके हैं। देन यू विल गेट one term of y1, the remaining equation will be y1 du1 by dx is equals to f of x. This is a variable separable equation. Variable separable equations simple. अब हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक है u1 और दूसरा है x। ये दो हैं। x और u1 को दोनों को अलग करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, वी कैन गेट u1 of x। ये u1 of x आ गया। हमने ये कहा था कि जो y होगा वो u1 y1 का मल्टीपल है। सिंपल जो u1 आया है उसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें। नाउ व्हाट वी गेट yp। और हम करना क्या चाहते थे? yp ही ढूंढना चाहते थे। वंस yp is complete, your solution is complete. So we get u1 is equals to integral of f of x by y1। इसकी हेल्प से हम लोग इस सोल्यूशन तक पहुंचे हैं। सो अब ये हमारी मेथोडोलॉजी होगी जो आगे हम सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे टू फाइंड द solution of a non-homogeneous differential equation. Method for second order differential equation. Again second order differential equation का method भी हमारे पास approximately वही method है, बस सिंपल फर्क इतना सा होगा कि उसमें जब आपने yc फाइंड आउट किया था तो एक सोल्यूशन था, वहां से आपने y1 गेस कर लिया। यहाँ दो सोल्यूशन होंगे, यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो होगा। सो लेट अस मूव टू इट। Initially, this is a second order non-homogeneous differential equation. The equation is supposed to be a linear differential equation, non-linear नहीं होनी चाहिए। First of all, arranged in the form of PQ form. जब हम इसे PQ की फॉर्म में कन्वर्ट अरेंज करते हैं, then this g of x is converted to f of x. एक नई फॉर्म में आ जाता है g of x. Condition was अगर yc आया then you can apply variation of parameters. So सबसे पहले yc फाइंड करते हैं। yc जब आप फाइंड करेंगे y डबल प्राइम प्लस p of x y प्राइम प्लस q of x y equals to 0, homogeneous equation. What we did, yc आ गया। yc सेकंड ऑर्डर थी तो दो पार्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। जो पहला पार्ट होगा उसे y1 कह दें, जो सेकंड पार्ट होगा उसे y2 कह दें। y1 y2 दोनों होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, सो दे विल सेटिस्फाई द होमोजेनियस पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां तक का काम है, आपने ये चेक कर लिया कि yc एग्जिस्ट करता है, दो सॉल्यूशन आते हैं। अब हम इन yc को लेकर yp फाइंड करते हैं। जब लास्ट जो मेथड फॉर वन डायमेंशन किया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तब y1 था तो आपने सिलेक्ट किया था y was u1 y1। अभी आपके पास y1 y2 है, दो हैं, तो आप क्या करेंगे? u2 y2, कोई मसला नहीं। यहाँ पर c1 c2 लिखा था, वहां u1 u2 लिख दिया। मेक इट श्योर u1 u2 both are the function of the variable x. Once yp is selected, take the derivative, put it into a main differential equation and find the target is to find u1 and u2. Once u1 u2 are found, your yp will be complete and hence the general solution. प्रोसीड करते हैं उसी पैटर्न पे। yp फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब मसला ये है कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं yp का, ये तो इस पे प्रोडक्ट रूल, ये बन जाएंगी टू इक्वेशंस, ये बन जाएंगी 4
ये 6 8 इक्वेशंस सेकंड डेरिवेटिव की होंगी प्लस 4 ये होंगी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जहां पर u1 के डेरिवेटिव्स आ रहे हैं उनको अवॉइड करते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हम ये कह देते हैं कि u1 के डबल डेरिवेटिव नहीं आने चाहिए, ये नहीं आने चाहिए। अगर ये नहीं आएंगे तो फिर हम क्या सपोज कर देते हैं कि जहां पर इसके ये वाली जो टर्म्स हैं, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव आने का चांस है सेकंड डेरिवेटिव के केस में, हम उन टर्म्स को सारों को जीरो लेट कर लेते हैं। ये सपोजिशन है, सपोजिशन है जस्ट टू फाइंड वन इक्वेशन। वो सपोज कर लिया, पीछे क्या रह गया हमारे पास, वाई पी प्राइम फर्स्ट प्राइम ये रह गया, दिस इज वाई पी विद फर्स्ट प्राइम, u1 y1 प्राइम प्लस u2 y2 प्राइम, ये टर्म्स रहेंगे। अब हम इनका सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास 4 टर्म्स आ जाती हैं। अब दिस इज वाई पी प्राइम, दिस इज वाई पी डबल प्राइम, सारों को इक्वेशन में पुट कर दें। दिस वाज द मेन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आपने पुट किया, यू विल गेट दीज 8 टर्म्स। इन 8 टर्म्स को साथ लेते हैं और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब नॉन होमोजीनियस की फॉर्म में पुट करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आती है वो ये फॉर्म होगी। कुछ टर्म्स को कॉमन लेने के बाद आपने ये रियलाइज किया कि y1 की टर्म्स भी बन रही हैं, y2 की टर्म्स भी बन रही हैं। हमने ये पहले पढ़ा था कि ये वाली भी इक्वल्स टू 0 होती है, ये वाला फंक्शन भी इक्वल्स टू 0 होता है। रिमेनिंग क्या रह गया, जस्ट ये u1 y1 प्राइम प्लस u2 प्राइम y2 प्राइम इज इक्वल्स टू f ऑफ x। कुछ देर पहले मैंने ये कहा था कि हमने सपोज किया है एक टर्म, एक इक्वेशन सपोज किया है इससे पिछली स्लाइड के ऊपर, जैसे मैंने कहा था डबल डेरिवेटिव को अवॉइड करने के लिए हम ये चीज जीरो सपोज करते हैं। दूसरी इक्वेशन यहां से आ गई है। अब टोटल 2 इक्वेशंस होंगी। फाइंड क्या कर रहे थे, फाइंड विल मैं आपको रिवाइज करा दूं, हम u1 और u2 फाइंड आउट कर रहे थे। अननोन्स कितने हैं, 2। नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, 2। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं फिर हमारे लिए कोई मसला नहीं है, वी कैन इजीली फाइंड इट आउट। अब अगर आप मैट्रिक्स का मेथड यूज करते हैं, मैट्रिक्स का मेथड यूज करें। अगर आप कहते हैं मैट्रिक्स का मेथड यूज नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, तो सब्स्टिट्यूशन यूज करें, जो मर्जी मेथड यूज करें। इधर से u1 निकालें, इसमें पुट करें u1 प्राइम और सॉल्व करें, यू विल गेट अल्टीमेटली द सेम रिजल्ट। यहाँ पर हम वो मेथड यूज करते हैं जो जूनियर क्लासेस में आप पहले पढ़ चुके हैं, लीनियर अलजेब्रा में बार बार पढ़ चुके हैं। u1 प्राइम इक्वल्स टू दिस, u2 प्राइम w2 by w। मैं इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाता, where this w is representing the Wronskian, w1 is just the replacement and same as the w2 is also the replacement of the second column. Once इसमें you have to be very careful about it कि the w the Wronskian must not be equal to 0. This was the basic summary of the method. Generally defined कर दूं, second order differential equation I will explain in the form of steps. Step 1, find homogeneous equation. Step 2, find the complementary solution. Wronskian must not be equal to 0. Wronskian confirm करना है, फिर आप yp की तरफ मूव करेंगे। By dividing with a2, we transform the given non-homogeneous equation into standard form. We have converted it into this form. We now construct the determinant w1 and w2. We can construct before step 6. यहाँ पर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहें आप कर दें, तो बाद में हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। नेक्स्ट वी डिटरमिन द डेरिवेटिव्स u1 प्राइम u2 प्राइम, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें। u1 you can find by integrating, u2 you can find by integrating, hence the yp is clear. अब देखें जो मेथड की बेसिक टर्मिनोलॉजी थी कि yp डिफाइन करने के बाद सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट से आपने सारा काम करना है। आप उस मेथड को हर स्टेप में अलग अलग अप्लाई करना चाहें, इट इज ऑल अप टू यू।
आप वो फार्मूला याद करें जो हम लोगों ने लास्ट इसके मेथड में एक्सप्लेन किया है, और उसको जैसे कि ये स्टेप्स में वाइज बताया गया है, आप डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज करें और अपना काम कंप्लीट करें। इट इज ऑल अप टू योर चॉइस। मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि फॉलो दी स्टेप्स, मगर मैं आपको ये जरूर कहता हूं कि आपको वो मेथड पता होना चाहिए कि कैसे आप इन स्टेप्स, इन फार्मूलाज तक कैसे पहुंचे हैं। ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। देन यू कैन यूज दीज डायरेक्ट फार्मूलाज। Hence, the final solution. Constants of integration, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया गया है कि हम जब भी इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर जैसे कि u1 को मैंने u1 prime was simply w1 by w if it is this, तो जब मैंने u1 कैलकुलेट किया w1 by w के साथ इंटीग्रेटिंग, I did not apply this constant of integration C, जिसे आप कैलकुलस में पढ़ते थे कि आपने हर सूरत अप्लाई करना है। यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब अपीयर होता है वो आके जाके खुद मिक्स हो जाता है उस कांस्टेंट के साथ जो आपने C1 डिफाइन करना है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में। अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं यहाँ पर अप्लाई कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं अप्लाई करना चाहते तो आपको बेसिक फोकस मेथडोलॉजी पे होना चाहिए। इट इज ऑल अप टू योर चॉइस। यहाँ पर इस टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन में ये बताया गया है कि उसको सी को इंट्रोड्यूस कराने से सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट विल बी जस्ट एन एक्स्ट्रा वर्क। जैसे कि ये C1 के साथ वो कांस्टेंट मिक्स हो गया है, यहाँ पर C2 के साथ वो कांस्टेंट मिक्स हो गया है। यू कैन जनरेट अ न्यू कांस्टेंट विच इज कैपिटल C1 एंड कैपिटल C2। आप एक नया कांस्टेंट डिफाइन करके और चल पड़े। बेसिकली कांस्टेंट कांस्टेंट में ऐड हो गया, वेरिएबल्स में कोई चेंजेस नहीं आई। हम फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस उसे फिलहाल इग्नोर करते हैं। आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट स्टेप, वी नीड होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वी नीड y इक्वल्स टू e पावर mx। ये क्यों करते हैं सिलेक्ट या लेट क्यों करते हैं? टू जनरेट एन ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन जनरेट करने के बाद वी फाउंड अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन रियल एंड रिपीटेड है। ये कैसे लिखा गया ये सब कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं। यहां से मैं सिलेक्ट करूंगा y1 और ये हो गया y2, मगर yp सिलेक्ट करने से पहले मैं ये कंफर्म करूंगा कि मेरे पास रॉन्स्कियन नॉन जीरो है। y1 y2 I move toward the Wronskian, opening the determinant। ये हर सूरत आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है ये एक ही चीज दो दफा नहीं लिखी हुई, ये दोनों टोटली अलग हैं। Once they are defined linearly independent, then you have to construct f of x। f of x कंस्ट्रक्ट करेंगे और कंस्ट्रक्ट कैसे करना है? जस्ट डिवाइड a2 वो होगा जो कोफिशिएंट है y डबल प्राइम का, इसको डिवाइड कर लें, यू विल गेट f of x। f of x डिफाइन करने के बाद यू कैन डिफाइन w1 w2 w1 w2 दोनों जब डिफाइंड हो गए तो you just put the values, then you can find u1 by using the formulas which we have already derived। Simple put the values, w1 w की values put करेंगे, you will get some form of u1 prime u2 prime, and to obtain the exact values of u1 you have to integrate। इससे पहले हम ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c we will not add this term, ये हमने ऐड नहीं करना। सिंपल जो फंक्शन होगा उसी को ऐड करते हैं, उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। और u1 u2 once they are defined, put them in the values of yp जो जनरल मेथडोलॉजी आपने स्टडी की थी, आपने ये कहा था u1 को आपने y1 से मल्टीप्लाई करना है, सेम इज द केस u2 को आपने y2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो u1 आएगा उसे y1 से मल्टीप्लाई कर दें, u2 आएगा उसे y2 से मल्टीप्लाई कर दें,
hence your YP is complete. Once YP is complete, you can write final form of the general solution YC plus YP. Let us move toward the example 2. Step 1, you just have to do is to find YC. With the help of YC, you will find the Wronskian. Then what we have to do is to find f of x. Once the f of x is defined, then you have to clear W1, W2 ये फाइंड करने हैं, वो फाइंड कर लेंगे. You can find U1 prime, U2 prime. ये दोनों जब आ जाएंगे, with the help of integration, you can find U1 and U2. Hence the YP. ये बेसिकली सारे स्टेप्स हैं जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के अंदर आप यूज करते हैं. सो सबसे पहले वी विल मूव टुवर्ड YC. YC क्या कहता है कि होमोजेनियस इक्वेशन जनरेट करें, उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन डेवलप करें, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स बनाएं. अगर रूट्स रियल, कॉम्प्लेक्स, जो भी जिस भी नेचर के है, आप उस तरीके से चलेंगे आगे. Here we have complex roots. Complex roots, hence the solution are in the form of cos and sine. This is Y1, this is Y2. Y1, Y2 are defined. You have to construct is the Wronskian. Wronskian must not be equals to 0. ये clear होना चाहिए. If they are not equal to 0, what you have to do is to now you have to trace f of x. f of x के लिए आपने जो y डबल प्राइम का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करना है. Here by chance it is 1, so f of x will be same as g of x. Once your f of x is clear, जो आ चुका है, then you have to calculate W1 and W2. Sorry for the line. W1 and W2. Again, opening the determinant. W1, W2 may be 0, may not be equals to 0, but W must not be equal to 0. W1, W2 आ जाए, you can calculate this U1 prime, U2 prime. ये अगर आपके पास आ जाते हैं, then what you have to do is to integrate with respect to x, क्योंकि U1, U2 दोनों x के वेरिएबल्स x पे डिपेंडेंट थे. So x इंटीग्रेट करने के बाद you will get your final functions. Final functions, put these final functions in the form of yp. yp क्या है? U1 y1 plus U2 y2. Your yp is clear. Once your yp is clear, then write the general solution. This is yc and hence the yp. दोनों solution को साथ लिखें. This is yc and yp. ये बेसिकली हमारे पास सिंपल सा मेथड है. कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि जिसमें आप कंफ्यूज हों या कोई ऐसी वर्किंग नहीं है, सिवाय एक स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन आएगा. उस इंटीग्रेशन में आप इंटीग्रेशन में वीक हों तो अलहदा बात है, अदरवाइज मेथड में कोई ऐसा इशू नहीं कि आपको प्रॉब्लम आती हो. Let us solve one more example. Y double prime minus y equals to 1 by x. For the complementary function, consider the associated homogeneous equation, where the homogeneous equation is, we will construct the auxiliary equation by this substitution. The auxiliary equation will give us two distinct and real roots. Distinct और real roots को solve लिखने का method ये होता है. यहाँ से आ गया y1 और y2. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे Wronskian. Wronskian must not be equal to 0. डिटर्मिनेंट कैसे ओपन होता है मैं इस डिटेल में नहीं जाता, सिंपली एक ही जुमले में बात को खत्म करता हूं. दिस मल्टीप्लाई बाय दिस विद द नेगेटिव साइन. ये वो छोटी छोटी चीजें विच यू कैन browse through the internet or any book of junior classes. The given equation is already in the standard form.
ये ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म उस सूरत में कहते हैं जब यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट पहले से 1 हो। f of x 1 by x, we define w1 w2 with the help of these two w's we can calculate u1 prime u2 prime. Simple, with the help of integration you can calculate u1, and by integrating you can calculate both the required functions. एक्सपोनेंशियल के इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर बता दूं जो यूज हो रहा है, वो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स। ये आपने पढ़ा हुआ है, मगर ये हमेशा नहीं होता है। इसके लिए शर्त यह है कि जो एक्सपोनेंट की पावर है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। दैट मीन्स इफ यू हैव ई पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, if we are having 2x here with a negative sign, now it is converted to minus x square. अगर ऐसा हो कि e पावर माइनस एक्स स्क्वेयर डॉट 1 लिखा हुआ हो डी एफ एक्स, नाउ इट इज नॉट इंटीग्रेबल। इसकी पावर का डेरिवेटिव हर सूरत यहाँ पर मौजूद होना मस्ट है, और कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की होती है। अभी कंडीशन क्या है कि आपके पास जो फंक्शन है वो है सिंपली ई पावर माइनस एक्स 1 बाय एक्स डी एफ एक्स। आप जिस पैटर्न पे चलते हैं ये बेसिकली इस पार्ट को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये नेचुरल लॉग बन जाता है। इस पार्ट को आप इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट तो हो जाएगा, मगर बात यह है कि ये आपका फंक्शन इंक्रीज करता जाएगा। ये पीरियोडिक फंक्शन है जो बार बार रिपीट होता रहेगा, इसी फॉर्म में आता जाएगा। जहाँ तक आप इस फंक्शन की बात करते हैं तो इसके डेरिवेटिव लेने से ये फंक्शन बजाय रिड्यूस होने के इंक्रीज करेगा, ये रिड्यूस नहीं होगा। सो फर्दर ऑन अगर ये वो इंटेग्रल है जो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में मूव कर जाता है। सो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, वी इंस्टेड ऑफ मूविंग इनटू न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और एनीथिंग लाइक दैट, हम सिंपली इसे उसी फॉर्म में रहने देते हैं। सिंपल जहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है ई पावर एक्स बाय एक्स को एक्स नॉट टू एक्स कर दिया है। आप ये ना भी करना चाहें, आप ऐसे भी रहने दें जैसे लास्ट पेज पे था, लास्ट स्लाइड पे था, तो भी मुझे कोई एतराज नहीं। सिंपली योर वाई पी विल बी completed, put the values of yp and yc in a main general solution, your solution of non-homogeneous differential equation is complete. Now one more question, इस क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट जो मेन स्टेप्स हैं उन्हीं को डिफाइन करूंगा। पहले मुझे yc कैलकुलेट करना है। स्टेप 1 में मैंने ये कहा था कि आपने क्या करना है, इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी उससे आपने m की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। यू नीड टू नो व्हाट इज yc, c1 e पावर x प्लस c2 e पावर माइनस x आ गया। y1, this part is y1, this part is y2. Second step, then you have to define the Wronskian. Wronskian क्या था, y1, y1 का डेरिवेटिव, y2, y2 का डेरिवेटिव, ओपन द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ओपन करने के लिए इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ई एक्स माइनस ई एक्स डॉट ई पावर माइनस एक्स माइनस साइन ई पावर एक्स डॉट ई पावर माइनस एक्स। पावर्स बेसिस मल्टीप्लाई हो, पावर्स ऐड होती हैं, इसकी पावर भी 0 बन जाती है, इसकी पावर भी 0 बन जाती है। व्हाट यू विल गेट इज -2 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। ये बेसिकली हर सूरत होना था। Once it is not equal to 0, then
थर्ड स्टेप में मैंने आपसे ये कहा था कि यू हैव टू डिफाइन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास इक्वेशन के अंदर जो a2 की पोजीशन थी, ये बेसिकली a2 की पोजीशन थी, अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 1 हो तो सिंपली जी एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स दोनों सेम हो जाते हैं। सो और एफ ऑफ एक्स विल बी e power x plus 1. This is f of x. F of x जब आपके पास आ जाए, what you have to do is then you can simply calculate w1. Your step 4 will be w1 define करें। w1 क्या होगा? 0 f of x e power minus x minus e power minus x। w2 define करें। w2 क्या होगा? e power x 0 e power x plus 1। The value of w1 will be minus e power x plus 1, ये आ गई, and the value of w2 will be e power x plus 1। I hope so, यहाँ तक कोई confusion नहीं। Then मुझे exactly याद नहीं है कि पीछे कितने steps हैं, मगर मैं जो चेंजिंग्स आ रही हैं उनको स्टेप्स कहता जा रहा हूँ, और मे बी उतना ही बने, मे बी ज्यादा बने, मे बी कम बने। u1 prime w1 by w1 value minus e power x plus 1 by minus 2। Same is the case u2 prime e power x plus 1 by 2। Step 6 में आपने क्या करना था? You have to integrate u1 prime with respect to x, you will get u1। Same is the case, you have to integrate u2 prime with respect to x, you will get u2। u1 u2 complete हो जाए, just put them in yp। After putting them in yp, you can find a general solution of the problem। बाकी इस क्वेश्चन को आप खुद ही कंप्लीट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 4.7 ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सी बुक फॉलो हम कर रहे हैं। हम जिल की बुक फॉलो कर रहे हैं और इट इज रिलेटेड टू 7th एडिशन। क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा, इन केस कोई प्रॉब्लम हुई तो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस कर लेंगे, या तो ऑनलाइन सेशन में, अदरवाइज वी कैन डिस्कस द प्रॉब्लम इन अ ग्रुप। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।